Okay, and now we start our session. Today our topic is the virtual function. Okay, basically in the previous class we already discussed about the what is the concept of the polymorphism and what is the its implementation. That means ki we can implement polymorphism, compile time polymorphism, and second is the runtime polymorphism. During the implementation of compile time polymorphism, we have discussed about the function overloading and uh, operator overloading. Okay, and when we have to implement runtime polymorphism, we can use the virtual function. Okay, so now we discuss about the what is the concept of the virtual function, what is the need of the virtual function, and how we can declare the virtual function. Okay, so basically, in this slide, you can say that basically polymorphism can be categorized in the two category. One is the compile time, and it is also known as the early binding. Okay, because this polymorphism can be the code of the polymorphism will be activated during the compilation, so it is also known as the early binding. Okay, and another polymorphism is runtime. That means the code of the such type of polymorphism will be activated during the execution of the program. So compile time polymorphism can be implemented by function overloading. Function overloading is just like a mechanism where we can declare more than one function in a single class. Okay, but the name will be same, but it consists of different arrangement of the parameters. Okay, apart from that, we also discussed about the operator overloading. Okay, uh, just for your knowledge, as we already know that there are 46 operators are available in C++, in which five operators that cannot be overloaded. Okay, we can also implement the uh, operator overloading mechanism, and we also see that the practical implementation of the overloading here, where we discuss how can we overload the increment operator or decrement operator. Okay, in case of the operator overloading, basically the operator will be not only used on the variable, but it will be also can be used on the objects. Okay, now we discuss about the runtime. It is also known as the late binding, and it can be implemented by the virtual function. Here we can see that virtual function slash function overriding. We already discussed about the function overriding. Function overriding requires minimum two classes, and this mechanism can be basically implemented in the concept of the inheritance. Okay, that means ki same name of the function having the same return type and having the same arrangement of the parameters, uh, but it will be available in parent class as well as the derived class. Okay, so this is the concept of the function overriding. Okay, now polymorphism, compiled, time, early binding. It is also known as the static binding. Okay, static binding, early binding, and compile time polymorphism. All terms are the similar. In the same way, dynamic binding, late binding, and runtime polymorphism is also be same. Okay. Now, what is binding? Okay. Uh, basically, binding means what? That means ki binding means suppose when we call any function, okay, and compiler binds or links the call to one function definition. Okay, this is the basically known as the binding. Okay, we already discussed about the compile time polymorphism. Okay, that means ki here we already discussed, that means ki the code will be activated during the compilation of the program. That means ki the decision of binding among several function is taken by considering formal arguments of the function, their data type, and their sequence. Okay, we already discussed about the what is the concept of the formal parameter and what is the concept of the actual parameter. Okay, this is the basically compile time polymorphism. This is the basically concept of the function overloading. Here there are two functions, my functions. Okay, the name of the function is my function, and one consists integer parameter and another consists the character parameter. Okay, so basically this is the concept of the function overloading, and it is also an implementation of the compile time polymorphism. Okay, now runtime polymorphism. Okay, so virtual function are example of late binding in C++. Okay, and runtime polymorphism is achieved using pointers. That means ki when we use
the virtual function, and when we have to implement runtime polymorphism, then we have to some concept about the pointers. Okay, this is the basically polymorphism. Okay, runtime polymorphism. Here we can say that simply we can see the program structure. Class base is the parent class, and it consists a member function that is show, है ना? That means कि here we can display show from base. That means कि when we call the function show, it will be easily identified that कि it will be the member variable of the class, or it is parent class, or it will be the member variable of the child class. Okay, another class is the derived class, and it inherits the class base, and it consists same function having the same name, having the same return type, and also having the same arrangement of the parameters. Okay, so basically this is the concept of the overriding we already discussed. Okay, now in main function we have to create the object of the parent class. The name of the parent class is the base, and here we have to create the object that is the pointer type. Okay, base ptr अगर हम लिखते हैं base ptr, that means कि ये simple object, लेकिन यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, base asterisk ptr, that means कि the pointer type object. तो what is the use of the pointer variable? Pointer variable is the variable that holds the address of the another variable, है ना, जो कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है. दैट इज नोन एज द पॉइंटर वेरिएबल. ओके, तो यहाँ पे जो हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, ये पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा. नेक्स्ट आप देख रहे हो कि डिराइव्ड क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है ओबी, है ना, और पीटीआर में हमने क्या रखा, रेफरेंस ऑफ ओबी. रेफरेंस ऑफ ओबी का मतलब क्या है, दैट मीन्स कि ओबी का रेफरेंस यानी उसका फिजिकल एड्रेस. तो पीटीआर जो आपका बेस इक्वल एस्ट्रिक पीटीआर है, पीटीआर क्या है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, और पॉइंटर का यूज क्या होता है, किसी भी दूसरे का फिजिकल एड्रेस को स्टोर करने के लिए. तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, पीटीआर इक्वल टू एस्ट्रिक रेफरेंस ऑफ ओबी. और उसके बाद हमने क्या लिखा, पीटीआर एरो ऑपरेटर शो. एरो ऑपरेटर का यूज वहां पे करते हैं जहां पे अगर हमारा पॉइंटर हो. अगर हमारा पॉइंटर टाइप का ऑब्जेक्ट होगा तो हम क्या लिखेंगे, पीटीआर एरो शो, एरो ऑपरेटर के थ्रू. लेकिन अगर ये सिंपल ऑब्जेक्ट होता तो हम क्या लिखते, पीटीआर डॉट शो. ओके, हाँ, एनी क्वेश्चन? हेलो, एरो ऑपरेटर्स का थोड़ा अभी confuse बता है। रहे हैं. अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा ये सिंपली हम आपको एक बार डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे अभी, ठीक है ना, इसीलिए आप टेंशन नहीं लीजिए. आप ये समझ Okay. लीजिए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है, अभी तक आप सिंपल ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना, जैसे टेस्ट1 T1, तो T1 अगर हम बना रहे हैं तो उसको अगर हमको अगर सपोज कीजिए उसके थ्रू मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है तो क्या लिखते थे, डॉट ऑपरेटर T1 डॉट शो. अब आप ये समझिए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंटर टाइप का होगा तो डॉट के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, एरो ऑपरेटर. क्लियर? ओके, ठीक है. तो बेसिकली दिस इज द पॉइंटर बिहेवियर इन द पॉलीमॉर्फिज्म. अब यहाँ पे एक चीज आप देखो कि इस पीटीआर जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर में हमने किसका एड्रेस स्टोर किया है, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का. अब जब आप लिख रहे हो पीटीआर डॉट शो यानी पीटीआर एरो डॉट शो, तो क्या दिख रहा है, शो फ्रॉम बेस. शो फ्रॉम बेस, दैट मीन्स कि पीटीआर के अंदर में एड्रेस किसका है, चाइल्ड क्लास का. लेकिन जब हम उसका फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका अपना बेस क्लास का ही फंक्शन कॉल को हो रहा है. समझ में आ रहा है ना. तो ये बेसिकली होना क्या चाहिए था कि हम पॉइंटर वेरिएबल में सपोज कीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट हम रख लें डिराइव्ड क्लास का, तो हमारा डिराइव्ड क्लास का फंक्शन शो होना चाहिए. दैट मीन्स कि आवर आउटपुट विल शुड बी शो फ्रॉम डिराइव्ड, है ना. तो इसको अगर इंप्लीमेंट अगर आपको करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बेस क्लास है ना, इसको हम क्या बना देंगे, वर्चुअल कीवर्ड लिख देंगे आगे, वर्चुअल वॉइड शो. और सेम कोड अगर आप फिर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, शो फ्रॉम डिराइव्ड. क्लियर है? तो यही आपका कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल फंक्शन का. वर्चुअल फंक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर फंक्शन ओवरराइडिंग हो रहा है तो फंक्शन ओवरराइडिंग के में हम क्या कर सकते हैं, जनरली आपने देखा था कि फंक्शन ओवरराइडिंग में मैंने जब आपको बताया था, तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना, चाहे वो पेरेंट क्लास हो या चाहे चाइल्ड क्लास हो, जिसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे और उसी का वो फंक्शन कॉल हो रहा था.
लेकिन अगर हम वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे उस केस में जिसका एड्रेस हम स्टोर करेंगे उस पॉइंटर में, उसी का आपका क्या दिखना चाहिए, फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, तो नाउ it is basically not the end of the PPT, but now we go for the practical session. Okay, so first I want to give the concept of some basic concept of the pointer, and then we go for the virtual class. Okay, Yes, sir. first we go for the pointer. What is the concept of the pointer? Some brief introduction. It is a variable that holds the physical address of another variable. Okay, it is a variable that holds the physical address of the another variable, है ना। अब सपोज कीजिए कि हम इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे। सब सिंटैक्स डिक्लेरेशन, यहां लिखेंगे डेटा टाइप, दिस इज द साइन ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल। ओके, और यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल नेम। ठीक है, ये आपका पॉइंटर वेरिएबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख रहे हैं इंट, यहाँ लिख दिया एस्ट्रिक और यहाँ लिख दिया सपोज ए, तो ए विल बी द पॉइंटर वेरिएबल। क्लियर है। तो ये जो एस्ट्रिक है, दिस एस्ट्रिक इज नोन एज डी रेफरेंस ऑपरेटर। ओके, क्या बोलते हैं इसको, डी रेफरेंस ऑपरेटर। ओके, और ये जो आपका एस्ट्रिक है, दिस एस्ट्रिक इज नोन एज द, क्या बोलते हैं इसको, एक तरीके से बोल सकते हैं एड्रेस ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, या इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, एपरसेंट Yes, sir. ऑपरेटर, है ना। या इसको ये भी इसका जो नाम है बेसिकली है एम्परसेंट। ओके, ये है पूरा पॉइंटर का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इसी दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों चीज का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको पॉइंटर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए कि हमने बनाया इंट एस्ट्रिक ए, ठीक है ना, इंट एस्ट्रिक ए बनाया। ओके, तो दैट मीन्स कि इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल। ओके, ठीक है, और एक बनाया बी इक्वल टू सपोज कीजिए 5। क्लियर है, इंट एस्ट्रिक ए और एक क्या लिया, बी इक्वल टू 5। अब ए जो है, ए क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, और बी क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल का बेसिकली यूज क्या है, इट इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द फिजिकल एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम क्या है, पॉइंटर वेरिएबल का नाम है ए, और इसके अंदर में हम क्या रखेंगे, किसी दूसरे जो वेरिएबल है उसका एक फिजिकल एड्रेस रखेंगे। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या है, एड्रेस ऑफ बी। ओके, यानी ए के अंदर में हम क्या रख सकते हैं, बी का एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। So basically Yes, this is the, yeah, this is the working of the pointer variable. It always holds the physical address of the another variable. अगर a equal to b अगर आप लिखेंगे तो it is not the working of the pointer variable. Okay, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आप हल्का सा छोटा छोटा प्रोग्राम बता देते हैं, है ना, क्योंकि फिर बहुत लोगों को दिक्कत आएगा पॉइंटर्स में, जहां तक मुझे लग रहा है। हैश इंक्लूड सपोज iostream डॉट एच हैश, ध्यान से समझिएगा इसको, नहीं आएगा बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं,
conio.h, ठीक है। सिंपल सा प्रोग्राम देते हैं void main, ओके। यहाँ पे ले लिया int a इक्वल टू, या लिख लिया int एस्ट्रिक a, ओके, और यहाँ लिख दिया b इक्वल टू 5, ठीक है। क्लियर स्क्रीन, ओके। अब a का काम क्या है, a इज अ पॉइंटर वेरिएबल, इसके अंदर में हम किसी का फिजिकल एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या है, रेफरेंस ऑफ b, ओके। अब यहाँ पे लिखते हैं सी आउट /n द वैल्यू ऑफ a, यानी a के अंदर में क्या स्टोर हुआ वो आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a, क्लियर है। फिर लिखते हैं सी आउट /n द वैल्यू, या लिखते हैं द फिजिकल एड्रेस ऑफ किसका, b का, है ना, b का। तो फिजिकल एड्रेस b का क्या लिखेंगे, रेफरेंस ऑफ b, यही होगा ना, क्लियर है। यस सर। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया a, पॉइंटर वेरिएबल का अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली यूज टू होल्ड द फिजिकल एड्रेस या स्टोर द एड्रेस ऑफ फिजिकल एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने वही काम किया है। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि दो बार यहाँ पे डिस्प्ले क्यों कराया है, क्योंकि मुझे ये दिखाना है आपको कि a की वैल्यू क्या है। तो a के अंदर में क्या स्टोर होगा, b का फिजिकल एड्रेस, और फिर हम कर रहे हैं फिजिकल एड्रेस ऑफ b। तो दैट मीन्स कि बोथ ऑफ द जो भी आपका आउटपुट होगा वो दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा सर। डिफरेंट होगा। एनीबडी, डिफरेंट होगा या सेम होगा? सर डिफरेंट होगा। नो नहीं, सर। डिफरेंट, नहीं सर, डिफरेंट कैसे same। होगा ये बताइए मुझे। नो सर। ए के अंदर Not में equal। रेफरेंस बी का मतलब क्या है, बी का फिजिकल एड्रेस, यस ठीक सर। है। तो बी का जो फिजिकल एड्रेस है वो किसके अंदर में आपका आ गया, ए के अंदर में स्टोर हो गया ना, यस सर। ठीक है। तो ए की ही वैल्यू को तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया, और यहाँ पे क्या किया, रेफरेंस ऑफ बी को कराया। तो दोनों में कोई डिफरेंस है? नो सर। नो, गुड। अब देखिए, नो एनी डिफरेंस, नो सर। क्लियर। यस सर। देख रहे हैं कहीं कोई चेंजेस नहीं है। तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉइंटर, है ना। पॉइंटर का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। एक और चीज देखते हैं। अब ये सपोजिए कि अगर हमें जो पॉइंटर वेरिएबल ए है उसका अगर हमें अगर सपोज कीजिए कि फिजिकल एड्रेस निकालना है तो क्या लिखेंगे, व्हाट वी हैव टू राइट, सी आउट, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट /n द फिजिकल एड्रेस ऑफ ए का फिजिकल एड्रेस सपोज कीजिए हमें फाइंड आउट करना है, व्हाट वी हैव टू राइट। सर M% है। वेरी गुड, M% ए, सही है, M% ए। क्लियर, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे बताइए मुझे यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि ए है, ए के अंदर में हमने क्या स्टोर कर दिया, बी के एड्रेस को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एक कुछ पूछ रहे हैं, सी आउट /n द वैल्यू एट द एड्रेस, ये समझिएगा थोड़ा, द वैल्यू एट द एड्रेस, इसको लिखेंगे एस्ट्रिक, ठीक है, ए। अब ये समझिए क्या है, द वैल्यू एट द एड्रेस हमने क्या लिखा, एस्ट्रिक ए, ठीक है ना। अब बताइए ए किस तरीके का वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है या नॉर्मल वेरिएबल है? सर पॉइंटर वेरिएबल है। वेरी गुड, पॉइंटर वेरिएबल है। और पॉइंटर वेरिएबल ने किसके फिजिकल एड्रेस को स्टोर करके रखा है, बी के B सर। के बी के, ठीक है। और बी का वैल्यू क्या है, 5। 5। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये कह रहा है द वैल्यू एट द एड्रेस का मतलब ये हो गया कि ए ने जिस फिजिकल एड्रेस को स्टोर किया हुआ है
उसकी वैल्यू क्या है, उस फिजिकल एड्रेस पे उसकी वैल्यू क्या है। तो एक ने किसको स्टोर किया, बी के फिजिकल एड्रेस को, है ना, और उस पे वैल्यू कितनी है 5। अब यहाँ पे चेक करते हैं, आ गया 5। यस सर। ओके, इसका मतलब ये है, एस्ट्रिक ए का मतलब ये है, ए इज अ पॉइंटर वेरिएबल, और उस पॉइंटर वेरिएबल ने जो भी जिस वेरिएबल का फिजिकल एड्रेस स्टोर किया है, ठीक है ना, जिस वेरिएबल का फिजिकल एड्रेस स्टोर किया है उस वेरिएबल का वैल्यू क्या है। तो उसने क्या किया था, बी के फिजिकल एड्रेस को स्टोर किया था, और बी के वेरिएबल का वैल्यू क्या है, लॉजिकल वैल्यू क्या है 5 है। क्लियर? यस सर। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, द वैल्यू एट द एड्रेस which is hold by the pointer variable। क्लियर? दैट मीन्स कि जो पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल ने जिस फिजिकल एड्रेस को स्टोर किया है ना, उस पे कौन सी वैल्यू है, उसका फिजिकल वैल्यू। देखिए जनरली जो भी हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, जो भी वेरिएबल होता है ना, उसका दो वैल्यू होता है, ठीक है। b इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5 को हम क्या बोलेंगे, इट इज द लॉजिकल वैल्यू। क्लियर है? लॉजिकल वैल्यू ऑफ b इक्वल टू कितना है 5 है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने क्या लिखा, रेफरेंस ऑफ b, ये क्या है, दिस इज द फिजिकल एड्रेस, दिस इज द फिजिकल एड्रेस। ओके, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल वैल्यू एंड द फिजिकल एड्रेस, एनीबॉडी? सर लॉजिकल वैल्यू 5। नहीं, लॉजिकल बेसिकली आई एम आस्किंग अबाउट द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल वैल्यू एंड फिजिकल एड्रेस। सर फिजिकल एड्रेस जो कि लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करता है। फिजिकल एड्रेस सर वो मशीन मतलब कंपाइलर द्वारा ऐसा होता है सर। वो हुआ जो कि सीपीयू उसको जनरेट करता है कि उसका जो वैल्यू है, उसका जो मेमोरी ब्लॉक है वो कहाँ पे क्रिएट हुआ है रैम में। वेरी गुड, वेरी गुड। लॉजिकल वैल्यू हुआ जो सर यूजर इनपुट करता है, हम लोग देते हैं सीपीयू को उसमें स्टोर करके रखने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ निकेत, निकेत सही बोल रहे हैं एकदम। बेसिकली देखिए, व्हाट बेसिक डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल वैल्यू एंड द फिजिकल एड्रेस इज दैट लॉजिकल वैल्यू इज जनरली गिवन at during the time of coding or during the execution of the program, am I right? जब आप कोड करते हैं तो Yes. वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं ना, Yes, sir. इनिशियलाइज भी करते हैं, या क्या करते हैं, वैल्यू को वेरिएबल के अंदर में जो भी वैल्यू लेते हैं वो कब लेते हैं, रन टाइम में लेते हैं। ओके, तो सच टाइप ऑफ वैल्यू इज बेसिकली नोन एज द लॉजिकल वैल्यू। वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज द वैल्यू दैट इज द इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, है ना, हम लोग जिसको समझ सकते हैं, जो भी इनपुट कर सकते हैं। ओके, फिजिकल एड्रेस इज बेसिकली द जनरेटेड बाय द सिस्टम इटसेल्फ। ओके, और इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, डेवलपर या प्रोग्रामर जो भी है उस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा कि कहाँ पे आपका मेमोरी स्टोर हो रहा है और कितना हो रहा है, ठीक है ना, इस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली फिजिकल एड्रेस इज जनरेटेड बाय द सिस्टम इटसेल्फ। ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटर में, यहाँ तक क्लियर है सबको? एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। ओके, अब थोड़ा सा हम बता देते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द पॉइंटर वेरिएबल। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो वैल्यू यहाँ पे है, रेफरेंस ऑफ ए भी है और एक रेफरेंस ऑफ बी भी है। तो रेफरेंस ऑफ ए दैट मीन्स कि इट इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ फिजिकल एड्रेस ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल ए, और बी रेफरेंस ऑफ बी का मतलब क्या है, इट इंडिकेट्स द फिजिकल एड्रेस ऑफ द बी। तो दो पॉइंटर वेरिएबल, दो फिजिकल एड्रेस को हम क्या ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड मोर देन वन फिजिकल एड्रेस एट अ टाइम और नॉट। जैसे लॉजिकल वैल्यू है, ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 6, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं ना, हम लोग कर सकते हैं। यस सर। ओके, लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास दोनों एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस मान लो रेफरेंस ऑफ बी और रेफरेंस ऑफ ए, और दोनों को हमें ऐड करना है, तो इट में बी पॉसिबल और नॉट?
नो सर, फिजिकल एड्रेस तो नहीं होना चाहिए सर। हाँ, एनीबडी, देखिए दो पॉइंटर वेरिएबल को आप कभी भी हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए, इसको एक चेक भी कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि प्रोग्रामिंग है ना। प्रोग्रामिंग में हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि एवरीथिंग कैन बी चेक्ड। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं एक बार, एडिशन इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं रेफरेंस ऑफ ए प्लस रेफरेंस ऑफ बी। एरर, invalid pointer addition, that means कि we cannot add the pointers. Okay, clear? समझ में आ गया? यानी पॉइंटर को हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बार मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीजें होती हैं कि नहीं। ये भी नहीं होगा, इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर, है ना। इसी तरह से डिवीजन भी कीजिएगा, नहीं आएगा। माइनस भी करके देख लेते हैं, ये भी नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि जो भी आपका अर्थमेटिक ऑपरेशंस है वो मोर देन वन पॉइंटर्स को जो फिजिकल एड्रेस है, ना ही हम उसको ऐड कर सकते हैं, ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ हियर वी कैन सी, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। रेफरेंस ऑफ ए प्लस 2, इट विल बी पॉसिबल और नॉट? एनीबडी? इट विल बी पॉसिबल और नॉट? रेफरेंस ऑफ ए में ऐड क्या कर दिया हमने? 2। यस सर, पॉसिबल। व्हाट, सपोज कीजिए रेफरेंस ऑफ ए का वैल्यू है 1024। ओके, रेफरेंस ऑफ ए का वैल्यू है 1024, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेफरेंस ए प्लस 2? 1026 सर। इफ इट इज पॉसिबल। यस सर। नहीं सर, 1030 होगा सर, क्योंकि 2 ऐड करे तो इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो 4 उसमें ऐड होगा सर। हाँ, तो 1024 में 4 ऐड करेंगे तो 1028 होगा ना। 28 वही सर। यस, वेरी गुड अनिकेत, एकदम सही, राइट आंसर किया इन्होंने। कि जो भी हमारा एड्रेस होगा ना, इसमें +2 का मतलब ये नहीं है। 2 क्या है? 2 का मतलब है कि दो इंटीजर डेटा टाइप हम ऐड कर रहे हैं, है ना। ये 2 आपका नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। ओके, जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल में +2 ऐड करेंगे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि वो 2 जो है वो किस तरीके का आपने पॉइंटर यूज किया हुआ है। तो वहां पे इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4 ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, रेफरेंस ऑफ ए का जो वैल्यू आ रहा है थर्ड में, है ना, थर्ड में, उसमें 2 ऐड करके आपका आउटपुट आएगा। यहाँ पे आ रहा है ना, देखो 0x यानी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है 8F7B FFF4, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? FFF8। ओके, यस सर। okay, say in the same way we can also perform the minus. Compile now, 0 आ गया ना। देखिए लास्ट में 4 था, 4 - 4 हो गया, तो लास्ट में आ गया 0। ओके, यस सर। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सॉरी सब्सट्रैक्शन, कोई भी इंटीजर वैल्यू को अगर आप माइनस करें प्लस करें तो इट कैन बी पॉसिबल। ओके, तो बेसिकली दिस इज द बेसिक थिंग्स दैट विल बी नोन when we discuss about the pointer and when we use the pointer. Okay, these are the basic concept. ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ रेफरेंस क्या होता है, एस्ट्रिक क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ द एस्ट्रिक, व्हाट इज द रोल ऑफ द एम्परसेंट और एडिस ऑपरेटर, ठीक है, और यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ओके, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि अब आप ये सोचते होंगे कि जनरली आप देखते होंगे कि कोई भी एग्जाम में आता है प्रोग्राम लिखने के लिए, लिखा जाता है राइट अ प्रोग्राम, एक सिंपल भी प्रोग्राम देगा, मान लो कि 2 नंबर का एडिशन का ही प्रोग्राम करना है, और आपसे लिख देगा लास्ट में आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा बाय यूजिंग पॉइंटर। होता है ना ऐसा? यस सर। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड फाइंड द सम बाय यूजिंग पॉइंटर, यानी आपको पॉइंटर से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल?
इस तरीके के प्रोग्राम्स को आप कैसे करेंगे। आपको ये लगता है कि पॉइंटर तो हमें आता नहीं है, फिर हम कैसे इस प्रोग्राम को करें, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ किस तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं। सपोज एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेके बता रहे हैं, मान लीजिए कि आपको दो नंबर को ऐड ही करना है, ठीक है, और आपको क्या करना है, लास्ट में रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि बाय यूजिंग द पॉइंटर। ओके, तो देखिए कोड क्या लिखते हैं हम लोग, समझने का कोशिश करना है कि क्या वे है, वे ऑफ कोडिंग क्या है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू वैल्यूज, है ना, एंड फाइंड देयर सम एंड डिस्प्ले इट बट बाय यूजिंग द पॉइंटर। पॉइंटर को यूज करके आपको सारा काम करना है। ओके, तो आप ये बताइए कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल हम कितना इनपुट करेंगे अगर आपको दो नंबर का सम करना हो तो। हाउ मेनी वेरिएबल विल बी रिक्वायर्ड? टू वेरिएबल, टू वेरिएबल। ठीक है। अब आपको ये चीज पता है कि पॉइंटर के थ्रू आपको काम करना है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पॉइंटर वेरिएबल should be required here. Anybody can say what will be the number of the pointer variable? Sir, Three. 3. 3 पॉइंटर वेरिएबल सर। कितना? 3 सर, 3। 3 क्यों? सर एक ए का वैल्यू लेगा, एक बी का, और जो ऐड करके जहाँ पे रखेंगे उसका भी तो एक वैल्यू रहना चाहिए ना। नहीं तो उसको अगर नहीं भी लेंगे तो डायरेक्ट भी तो करा सकते हैं ना, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। 3 भी ले सकते हैं लेकिन ऐसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो वैल्यू है, ए और बी है। ओके, तो देखिए नंबर ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स पहले आप ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम बनाएंगे पॉइंटर के थ्रू आपको बोला जाएगा, तो सबसे पहले आपके पास सबसे पहला आपको प्रॉब्लम ये होगा कि कितने नंबर ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स बनाए। तो ये डिपेंड करेगा आपका नंबर ऑफ यूजर इनपुट पे। यूजर ऑफ इनपुट कितना है? 2। तो दोनों का फिजिकल एड्रेस स्टोर करने के लिए क्या बनाएंगे? 2 पॉइंटर वेरिएबल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एस्ट्रिक A1 और यहाँ पे लिख लेते हैं एस्ट्रिक B1। क्लियर है? ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं सी आउट /n एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B। ओके, दो वैल्यू आ गया, यहाँ लिख दिया सिन A B, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो आप लग रहा होगा कि सिंपल ही है। अब हमें चूंकि पॉइंटर के थ्रू करना है तो यहाँ पे लिखेंगे A1 इक्वल टू रेफरेंस ऑफ A और B1 इक्वल टू रेफरेंस ऑफ B। क्लियर है? A1 के अंदर में क्या रख दिया? A का रेफरेंस यानी A का फिजिकल एड्रेस, और B1 के अंदर में क्या रख दिया? B का फिजिकल एड्रेस, ठीक है। अब हमको क्या करना है? डिस्प्ले करना है सम। यहाँ लिखेंगे सी आउट /n सम इक्वल टू, क्या हो सकता है बताइए तो, क्या लिखेंगे यहाँ पे? पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू आपको सम करना है। A1 plus asterisk. हाँ बोलिए Asterisk A बोलिए, plus शिवम सही बोल रहे थे, एस्ट्रिक। A1 plus asterisk B1, sir. वेरी गुड, हाँ क्या लिखेंगे? एस्ट्रिक A1 प्लस एस्ट्रिक B1। क्लियर है ना? एस्ट्रिक A1 का मतलब क्या है कि A1 ने किसके फिजिकल एड्रेस को स्टोर किया है? A को, और A की वैल्यू क्या है? जो भी हम देंगे। उसी तरह एस्ट्रिक B1 में किसका स्टोरेज है? B का फिजिकल एड्रेस का, और उस एड्रेस पे किसकी वैल्यू होगी? B की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए कंपाइल नाउ 8 9 हो गया। Yes, sir. क्लियर? तो ये समझ में आ गया ना कि अगर आपको पॉइंटर के थ्रू बोला जाएगा तो किस तरीके से वर्क करना है। आपको पॉइंटर के थ्रू जब भी बोला जाए तो आप एक पॉइंटर वेरिएबल बना लीजिए, है ना। और नंबर ऑफ पॉइंटर वेरिएबल्स विल बी टोटली डिपेंड्स अपॉन द व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ इनपुट बाय द यूजर। ओके, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कितना नंबर इनपुट यूजर हो रहा है, क्योंकि जो यूजर इनपुट करेगा ना उसी का फिजिकल एड्रेस पे आपको काम करना है। ओके, तो फिजिकल एड्रेस तो स्टोर कर लेंगे, लेकिन हमें काम किस पे करना है? वी हैव टू वर्क ऑन द
वैल्यू एट द एड्रेस, उस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, वैल्यू पे आपको काम करना है, तो वहां पे एस्टिक ऑपरेटर यूज कर लेंगे। ओके, Yes, क्लियर है? sir. वेरी गुड, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ओके, Yes, sir. अब चलते हैं हम लोग वर्चुअल फंक्शंस पे। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग वर्चुअल फंक्शन पे, कैसे यूज करते हैं आप। अब आपको इसलिए मैंने बता दिया कि जब वहां पे बताएंगे ना, तो आपको, मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि कैसे पॉइंटर यूज कर रहे हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वर्चुअल फंक्शन में। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्लास है test1 के नाम से, ठीक है। ओके, या इसको एक काम करते हैं, इसको पेरेंट क्लास बना देते हैं, लिखते हैं, इसको लिखते हैं क्लास पेरेंट। ओके, इसके अंदर में एक फंक्शन बना देते हैं सिंपली पब्लिक void show, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं cout /n hello parent, है ना, जस्ट लाइक इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पेरेंट क्लास का मेंबर है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्लास बनाते हैं एक, सपोज कीजिए क्लास डिराइव्ड, है ना, या चाइल्ड बना देते हैं, क्लास चाइल्ड। इसने क्या किया है, इनहेरिट किया है किसको, पेरेंट क्लास को, पब्लिक पेरेंट। इसके अंदर में भी सेम नाम का फंक्शन है पब्लिक void show, सेम नाम का है, लेकिन इसका जो आउटपुट है ना, वो डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, तो cout/n हेलो, ठीक है, चाइल्ड लिख देते हैं। ओके, हेलो चाइल्ड, क्लियर है, ये आपका क्लोज हो गया। अब आपको ये लग रहा हो कि ये ऑपरेटर ओवर राइडिंग जब मैंने बताया था, सॉरी फंक्शन ओवर राइडिंग, तो इसी तरीके का कुछ हमने कोड वहां पे किया था। ठीक है, अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं चाइल्ड का, चाइल्ड C1, ठीक है, या बना लेते हैं पेरेंट का, पेरेंट P1, ठीक है। इसके बाद बना लेते हैं, सपोज कीजिए चाइल्ड C1, क्लियर स्क्रीन। ओके, दोनों के अंदर में सेम नाम का फंक्शन है, तो यहाँ पे लिखते हैं P1 डॉट शो, ठीक है, और यहाँ लिख दिया, सपोज कीजिए C1 डॉट शो, और ये हो गया गेट ch, क्लियर है। ओके, तो ये जो फंक्शन, ये जो मैं कोड लिख रहा हूं, ये कोड ऐसा नहीं है कि नया है, ठीक है। ये कहाँ पे यूज किया था हमने, फंक्शन ओवरराइडिंग में। तो यहाँ पे हम जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, है ना, और जिसको P1 डॉट शो, P1 डॉट शो का मतलब किसको कॉल करेगा, हेलो पेरेंट, और C1 डॉट शो का मतलब क्या है, हेलो चाइल्ड। देखिए कंपाइल, अनएक्सपेक्टेड, नाउ रन, क्लियर है, हेलो पेरेंट हेलो चाइल्ड आ रहा है आपका। ओके, ठीक है, तो ये ओवरराइडिंग है। अब यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन का काम क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कीवर्ड यूज कर देते हैं वर्चुअल, वर्चुअल, सॉरी यहाँ पे नहीं, फंक्शंस जो होगा आपका पब्लिक, यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल void show। वर्चुअल void, जैसे ही हम कोई वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे, इसका मतलब ये है कि अगर पेरेंट क्लास में आपके पास कोई फंक्शन है, और वही सेम फंक्शन को आप कहाँ पे लिख रहे हैं, उसके डेराइव्ड क्लास में। सेम फंक्शन का मतलब क्या है कि उसका नाम सेम होगा, उसका रिटर्न टाइप भी सेम होगा, और उसका पैरामीटर भी सेम होगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कोई फंक्शन अगर आपका डेराइव्ड क्लास में है, तो हम पेरेंट क्लास के जो मेंबर फंक्शन होगा उसको क्या बना देंगे, वर्चुअल बना देंगे। तो वर्चुअल बनाने से देखिए क्या बेनिफिट होगा, अगर हम पेरेंट क्लास का सपोज कीजिए कि एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं, सपोज कीजिए P1 इक्वल टू रेफरेंस ऑफ C1, P1 इक्वल टू रेफरेंस ऑफ C1 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा पेरेंट क्लास क्या है, पॉइंटर टाइप का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। और पॉइंटर में क्या रखते हैं, किसी भी अनदर वेरिएबल का फिजिकल एड्रेस। तो क्लास का पॉइंटर है, तो क्लास का फिजिकल एड्रेस हम रख सकते हैं। तो क्लास, दूसरा क्लास क्या है, C1, तो यहाँ पे हमने लिखा रेफरेंस ऑफ C1, ठीक है। अब P1 के अंदर में किसका वैल्यू आ गया,
C1 का। अब यहाँ पे लिख सकते हैं P1 डॉट के जगह पे यहाँ पे यूज करेंगे और एरो ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। क्या लिखेंगे? P1 डॉट और ऑपरेटर सो। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नाउ रन। क्या आया? हेलो चाइल्ड। हेलो चाइल्ड क्यों आया है? क्योंकि हमने क्या किया है कि इसको वर्चुअल बना दिया। वर्चुअल बनाने से ये फायदा हुआ कि पेरेंट क्लास का हमने पॉइंटर बनाया और उस पॉइंटर में जिसका भी हम ऑब्जेक्ट डालेंगे, है ना, उसी का फंक्शन आपका कॉल होगा। तो यहाँ पे P1 जो आपका पॉइंटर क्लास है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर में हमने किसका ऑब्जेक्ट डाला है? रेफरेंस किसका डाला? चाइल्ड क्लास का। ठीक है, तो P1 में किसका आ गया एड्रेस? चाइल्ड क्लास का। तो P1 एरो ऑपरेटर सो जब यूज किया तो हमारा आउटपुट क्या आया? हेलो चाइल्ड आया। क्लियर है? ठीक है। लेकिन अगर हम वर्चुअल हटा देंगे, देखिएगा यहाँ पे, अगर सपोज कीजिए हम वर्चुअल हटा दें, तब आपके कोड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फिर वही काम करेगा जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। देखिए हेलो पेरेंट आ गया ना। ओके, तो ये दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द वर्चुअल फंक्शन। दैट मीन्स कि ये क्या करता है कि फंक्शन ओवरराइडिंग के अंदर में जो ये प्रॉब्लम होता है कि जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, उसी का फंक्शन आपका कॉल करेगा। ठीक है, लेकिन जब अगर हम वर्चुअल बना देते हैं, उस केस में क्या होता है कि अगर हम पेरेंट क्लास का कोई पॉइंटर टाइप का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट में जिसका भी वेरिएबल का फिजिकल एड्रेस स्टोर करेंगे ना, वही आपका ऑब्जेक्ट काम करेगा। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे तो आपको दिख रहा है चाइल्ड C1, ये भी तो हो सकता है कि हम एक पेरेंट क्लास का एक और पॉइंट ऑब्जेक्ट बना लें P2। ओके, और यहाँ पे कर देते हैं P1 है ना, उसका पॉइंटर P1 इक्वल टू रेफरेंस ऑफ डाल लेते हैं P2। ओके, और उसके बाद लिखते हैं P1 एरो सो। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? P1 एरो सो का आउटपुट क्या होगा? हेलो, यस सर। P1 एरो सो का सर आउटपुट क्या P2 का होगा? एड्रेस होगा। क्या होगा? P2 का एड्रेस। P1 रेफ इक्वल टू लिख दिया रेफरेंस ऑफ P2। तो P2 किसका ऑब्जेक्ट है? पेरेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट है ना। यानी जब P1 में आ गया पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट और P1 एरो शो करेंगे तो कौन सा कॉल होगा? चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल होगा या पेरेंट क्लास का कॉल होगा? चाइल्ड का होगा। चाइल्ड का नहीं ना, पेरेंट का। यहाँ पे देखिए, यहाँ P1 इक्वल टू क्या है? रेफरेंस ऑफ P2। P1 क्या है? पेरेंट क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, और P2 क्या है? पेरेंट क्लास का नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया, पॉइंटर का जो डिफिनीशन क्या होता है, पॉइंटर क्या करता है? किसी भी अनदर वेरिएबल के फिजिकल एड्रेस को स्टोर करता है। तो P1 इक्वल टू क्या लिख दिया? रेफरेंस ऑफ P2, है ना। यानी P2 का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस किसके पास चला गया? P1 में। और P1 एरो ऑपरेटर शो, तो बेसिकली जो P2 है वो किसका आपका ऑब्जेक्ट है? पेरेंट क्लास का। पेरेंट का। ठीक यस है, सर। तो यहाँ पे P1 में आ गया पेरेंट, और P1 एरो शो यानी ये पेरेंट क्लास के शो को, फंक्शन को कॉल करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पेरेंट क्लास का जो हमारा पॉइंटर जो ऑब्जेक्ट होगा, इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट में अगर हम चाइल्ड क्लास का रेफरेंस रखेंगे तो चाइल्ड वाला आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर इसके अंदर में पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रखेंगे, उस केस में क्या होगा? पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल हो जाएगा। समझ में आया? सर थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए आप ये समझ लीजिए, आप वर्चुअल फंक्शन का यूज ये है कि जो हमारा ओवरराइडिंग में जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, ओवरराइडिंग में प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि अगर पेरेंट क्लास में भी वॉइड शो नाम का फंक्शन है और चाइल्ड क्लास के अंदर में भी वॉइड शो नाम का फंक्शन है, और हम क्या कर रहे हैं कि इनहेरिट कर रहे हैं, उस केस में जब हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो क्या होता है? पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल हो जाता है। और अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अगर उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट फंक्शन कॉल होता है। यही होता था ना ओवरराइडिंग में। ओके, लेकिन yes. हम ये चाहते हैं कि हम कुछ वैसा मैकेनिज्म यूज करें कि जिसमें अगर एक ऑब्जेक्ट अगर हम बना रहे हैं पॉइंटर टाइप का, और उस पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट में जिसका भी हम रेफरेंस रखें, जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, चाहे वो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हो या पेरेंट क्लास का रेफरेंस हो, अगर हम उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर में चाइल्ड क्लास का रेफरेंस रखेंगे तो चाइल्ड वाला फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अगर उसी पेरेंट क्लास के पॉइंटर ऑपरेटर में
अगर हम पेरेंट क्लास का रेफरेंस रखें तो क्या होगा, पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल हो जाएगा। क्लियर है? दैट मीन्स कि वो टोटली किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि विच टाइप ऑफ रेफरेंस और फिजिकल एड्रेस दैट विल बी स्टोर्ड इन द पॉइंटर वेरिएबल। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये है वर्चुअल वॉइड शो, इसको हम लोग बोलते हैं। अब एक चीज देखिए, वर्चुअल फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने का तरीका ये है कि अगर पेरेंट क्लास में अगर आपने वर्चुअल बना दिया किसी भी फंक्शंस को, जैसे यहाँ पे शो नाम को फंक्शन को वर्चुअल बनाया गया है ना, तो जो भी उसका डिराइव्ड क्लास होगा ना, उसको उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, यानी उसकी बॉडी को डिफाइन करना पड़ेगा। वर्चुअल वॉइड शो लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी वॉइड शो फंक्शन होना ही चाहिए। अगर आपका नहीं होगा उस केस में एरर शो करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं SUM। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, क्या रहा है, अच्छा वहां पे तो फंक्शन कॉल कर दिया है ना, ओके ओके मिनट, ये कॉल कर दिया है इसलिए आ रहा है ऐसा। ठीक है, नीचे भी चेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है, एक होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, क्या होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन? तो प्योर वर्चुअल फंक्शन देखिए किसको बोलते हैं। मान लीजिए कि ये वर्चुअल फंक्शन है, इसको हम इनिशियलाइज कर दिया 0 से। ठीक है, क्या इनिशियलाइज कर दिया 0 से। एरर शो कर रहा है ना, एरर इसलिए शो कर रहा है, अब मैं बता देता हूँ एरर क्यों शो कर रहा है। ये वर्चुअल फंक्शन है, वर्चुअल वॉइड शो इक्वल टू 0 है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, और जैसे ही प्योर वर्चुअल फंक्शन आता है तब एक कॉन्सेप्ट आता है अबस्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, उसका डिफिनीशन क्या होगा, अ क्लास दैट कंसिस्ट अ प्योर वर्चुअल function, a class that consists of pure virtual function is called as क्या, abstract class। ठीक है, अब ऐसा कोई क्लास जिसके अंदर में प्योर वर्चुअल फंक्शन हो उसको हम क्या बोलते हैं, abstract क्लास। तो abstract जो क्लास होगा उसको आप कभी भी उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। वी cannot create the object of that class। क्लियर है? एक अबस्ट्रैक्ट क्लास किसको बोलेंगे, वैसा कोई क्लास जिसके अंदर में एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अबस्ट्रैक्ट क्लास। अबस्ट्रैक्ट क्लास का एक प्रॉपर्टी क्या है कि ये इसके अगर आपने किसी भी क्लास को अबस्ट्रैक्ट बना दिया तो उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पेरेंट एस्ट्रिक P1 लिखा, लिखा है सपोज कीजिए ये, और एक लिखा है पेरेंट P2, तो दैट मीन्स कि वी हैव ट्राइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच टाइप ऑफ क्लास, अबस्ट्रैक्ट क्लास, इसीलिए एरर आ रहा है। देखिए फंक्शन समझिएगा, यहाँ पे लिखिए कैनॉट क्रिएट इंस्टेंस ऑफ अबस्ट्रैक्ट क्लास पेरेंट। क्लियर? यस सर। समझ में आ गया ना, अबस्ट्रैक्ट क्लास किसको बोलेंगे। ठीक है, तो अबस्ट्रैक्ट जो क्लास होता है उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द अबस्ट्रैक्ट क्लास। आपसे पूछा भी जाता है कि व्हाट डू मीन बाय अबस्ट्रैक्ट क्लास, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ द क्लास जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसे बताना है टेक्निकली, अ क्लास दैट कंसिस्ट ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज कॉल्ड एज अ अबस्ट्रैक्ट क्लास। प्योर वर्चुअल फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, वर्चुअल वॉइड शो इक्वल टू 0 कर देंगे, तो दैट मीन्स उसका कोई बॉडी नहीं है, दैट इज द प्योर वर्चुअल फंक्शन। ओके, जब भी हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाएंगे ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी उसका डेराइव्ड क्लास होगा, देख रहे हो ना यहाँ पे पेरेंट क्लास जो है दिस इज अबस्ट्रैक्ट क्लास, लेकिन हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वी हियर वी कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द अबस्ट्रैक्ट क्लास। प्रॉपर्टी क्या है, जो यहाँ पे जो फंक्शन है वॉइड शो ना, उसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको ओवरराइड करना होगा, यानी जो वर्चुअल फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है उसकी बॉडी को कौन डिफाइन करेगा, उसका चाइल्ड क्लास। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज आप देखना है कि जो प्योर अबस्ट्रैक्ट क्लास है इसके अंदर में हम सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन ही बना सकते हैं या कोई अबस्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं।
अब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जस्ट लाइक कोई फंक्शन है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फंक्शन यूज करके देख लेते हैं कि वो फंक्शन हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कोई पूछ सकता है ना अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा या कोई दूसरा फंक्शन भी हो सकता है। तो उस केस में आपका माइंड नल हो जाएगा, आपके पास कोई रिप्लाई नहीं होगा क्योंकि आपने उसको करके नहीं देखा है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सिंपल सा एक स्टेटमेंट ही हम लोग डिस्प्ले करवा लेते हैं, ठीक है ना। हेलो अब्स्ट्रैक्ट, ओके, हेलो अब्स्ट्रैक्ट। देखिए कोई भी चीज मन में डाउट होता है ना, उसको प्रोग्रामिंग में सबसे अच्छा चीज यही है कि आप खुद से करके देख सकते हैं, और जैसे ही एरर आएगा उस एरर को अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तब भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब देखिए कंपाइल क्या रहा है, ये तो कैनॉट क्रिएट इंस्टांस है। तो चलिए इसको एक बार काम करते हैं, इसको हटा देते हैं ना, इस सबको हटा देते हैं। अभी चाइल्ड C1 रखते हैं, इसको भी हटा देते हैं। सारा यहाँ से हटा देते हैं एक बार, चाइल्ड C1, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं C1 डॉट फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट। नो एनी एरर, आ गया ना हेलो अब्स्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास कंसिस्ट प्योर वर्चुअल फंक्शन एज वेल एज द कंक्रीट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे उसी के नीचे लिख देते हैं abstract class consist concrete functions also। कंक्रीट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जिसका हम बॉडी भी डिफाइन किए हुए हैं ना, दैट इज नोन एज द कंक्रीट फंक्शन। तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा कोई अब क्लास जिसके अंदर में प्योर वर्चुअल फंक्शन हो उसको अब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलेंगे। इट कैन बी इनहेरिटेड बट वी कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर है। दूसरा चीज ये है कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप क्या कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में आपका कंक्रीट फंक्शन भी बना सकते हैं, जैसे जनरली क्लास में बनाते हैं वैसे बना सकते हो। ठीक है, और आपने देखा भी, उसको हमने कॉल भी किया। दूसरा एक होता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा होता है कंक्रीट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये होता है जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, और कंक्रीट क्लास का मतलब होता है जिसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया यहां तक। यस सर। ओके, तो यहाँ पे आज आपने देखा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक है। देन आपने देखा फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द यूज ऑफ द वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द वर्चुअल कीवर्ड। देन वर्चुअल फंक्शन अगर है तो प्योर वर्चुअल फंक्शन किसको बोलेंगे। देन आपने देखा कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास किसको बोलेंगे, और अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बाद आपने देखा कि कंक्रीट क्लास क्या होता है। ओके, क्लियर। यस सर। ओके, तो ये वर्चुअल फंक्शन का आपने देख लिया किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है ना। अब वर्चुअल फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज भी देख लेते हैं। वर्चुअल फंक्शन इज अ मेंबर फंक्शन दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज अ वर्चुअल कीवर्ड विद इन अ बेस क्लास एंड रिडिफाइंड बाय डिराइव्ड क्लास। यानी अगर पेरेंट क्लास में अगर आपने वर्चुअल अगर किसी फंक्शन को बनाया है, ठीक है, और उसको अगर कोई डिराइव्ड क्लास यानी उसका कोई चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट कर रहा है, तो उसको क्या करना होगा, उसको रीडिफाइन करना होगा। रीडिफाइन का मतलब क्या है कि अगर मान लो void show नाम का कोई वर्चुअल फंक्शन है, तो उस void show की बॉडी को फिर कौन डिफाइन करेगा, उसका चाइल्ड क्लास। ओके, उसके बाद है टू क्रिएट वर्चुअल फंक्शन प्रीसीड द बेस वर्जन ऑफ फंक्शन डिक्लेयर विद इन द कीवर्ड वर्चुअल। वर्चुअल के थ्रू करते हैं। व्हेन ए क्लास कंटेनिंग वर्चुअल फंक्शन इज इनहेरिटेड, द डिराइव्ड क्लास कैन रीडिफाइन और ओवरराइड द वर्चुअल फंक्शन टू सूट इट्स ओन यूनिक नीड्स, है ना। नेक्स्ट है द मेथड नेम यानी फंक्शन का नाम एंड टाइप सिग्नेचर शुड बी सेम फॉर बोथ बेस एंड डिराइव्ड वर्जन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे ओवरराइडिंग के अंदर में और वर्चुअल के अंदर में हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी हम फंक्शंस होगा उसका क्या होगा, नाम भी सेम होगा,
उसका रिटर्न टाइप भी सेम होगा और उसका अरेंजमेंट ऑफ द पैरामीटर भी सेम होगा। इस तरीके से यहाँ पे देखिए एक क्लास बना हुआ है सर्कल, ठीक है ना। वर्चुअल देखो यहाँ पे फंक्शन एक बना हुआ है वर्चुअल फ्लोट एरिया, और यहाँ पे देखिए एक बना हुआ है आपका फ्लोट एरिया, देख रहे हो ना। वर्चुअल फ्लोट एरिया यहाँ पे कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे फ्लोट एरिया। ओवरराइडिंग एरिया मेथड्स क्यों ओवरराइड किया गया है, क्योंकि इस क्लास को किसने इनहेरिट किया है, सिलेंडर क्लास ने इनहेरिट किया है, किसको, फ्लोट एरिया को। तो इसलिए क्या किया इसने, इसको ओवरराइड कर दिया। ठीक है, इसमें आपने ऑब्जेक्ट भी देखा किस तरीके से, मैंने अभी प्रैक्टिकल जो बताया था उसी के इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सर पीछे वाले पीपीटी में तो वो मतलब सर्कल को इनहेरिट कर रहा है शायद। किस में, नहीं नहीं सर, हाँ तो सर्कल ही इनहेरिट हो रहा है ना। यहाँ पे आप देखिए क्लास सर्कल के अंदर में क्या है, वर्चुअल फंक्शन है ना जी, और ये Yes, क्लास sir. सिलेंडर क्या है, ये आपका डेराइव्ड क्लास है। ठीक है, Yes, तो sir. ये डेराइव्ड क्लास का मतलब ये है ना कि सर्कल को इसने इनहेरिट किया है। तो वहां पे भी तो हम यही कर रहे थे ना कि जिस पेरेंट क्लास के अंदर में जो वर्चुअल फंक्शन था उसको कोई दूसरा क्लास इनहेरिट कर रहा था, और जो क्लास Yes, sir. उसको इनहेरिट करेगा, जो वर्चुअल फंक्शन है ना उसके कोड को फिर से लिखेगा वो। अब देखिए यहाँ पे फ्लोट एरिया है, यहाँ पे लिख रहा है ना कोड, यहाँ का कोड और यहाँ का कोड दोनों डिफरेंस है कि नहीं है, Yes, sir. है ना। तो इसी को बोलते हैं ओवरराइडिंग, यानी सेम नेम का फंक्शन है, उसका रिटर्न टाइप भी सेम है, उसका अरेंजमेंट ऑफ पैरामीटर भी सेम है, उसका नाम भी सेम है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्लास के अंदर में उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का वर्क परफॉर्म हो रहा है। जस्ट लाइक सैलरी, अगर मान लीजिए कि ग्रेड ए एम्प्लॉय है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, तीनों को तो सैलरी मिलेगा ना, लेकिन सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो तीनों का डिफरेंट होगा, होगा ना। बेसिक सैलरी डिफरेंस Yes, होगा, sir. टी अलग होगा, आपका डी अलग होगा, ये सारा चीज आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। ओके, Yes, sir. ठीक है, ये पीपीटी हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है ना, इसको आप लोग देख भी लीजिएगा। मेथड ओवरराइडिंग वही कॉन्सेप्ट है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का में डिफरेंस है। देखिए ओवरलोडिंग occurs when two or more methods is one class having the same methods but different parameters, ये ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। ओवरराइडिंग का मतलब क्या है, means having two methods with the same method name and parameters and one of the method is the parent class and another will be the child class। ओवरलोडिंग जो है वो कंपाइल टाइम में रिजॉल्व होता है और ओवरराइडिंग जो है आपका रन टाइम में रिजॉल्व होता है, ये चीज ध्यान रखना है हमेशा। ये ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का, इसलिए हम आपको इसको ये भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, ठीक है ना। अरे ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे ना तो आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, तो वो आप डिफरेंस आप ध्यान में रख लोगे उसको। ओके, ये आपका क्यू दिया भी है। ओके, now we conclude the session।